Welcome back friends. In today's class we will be continuing practice at 6.2. We had done the first two questions of 6.2 in the last class. Today we will be doing the remaining four questions in this class. So what does question number 3 say? Two buildings are facing each other on a road of width 12 meter. So width of the road is 12 meter. ये एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है. Okay, they are facing from the top of the first building, which is 10 meter high. So from the top of the first building, which is 10 meter high, the angle of elevation to the top of second is found to be 60 degree. तो यहाँ से बंदा कहाँ पे देख रहा है? यहाँ पे देख रहा है. Okay, and this angle of elevation is 60 degree. Simple logic. तो कैसे लिखेंगे? Let AB and CD be the two buildings and A and C be the tops respectively. ये लिखना है बच्चों, ऐसा नहीं टाइम पास कि सर नहीं लिख रहे हम भी नहीं लिखेंगे. एवरीथिंग कैन नॉट बी रिटन हियर. तुमको लिखना है ये लेट. क्या लिखेंगे? लेट A B and C D be the buildings and A and C be their tops respectively. So what are they saying? Okay, the width of the road is 12 meter. तो ये कितना 12 मीटर है, तो obviously this will be also 12 मीटर. तो इसको कुछ तो नाम दे देंगे, ठीक है. And from the top of the first building, which is 10 meter high, so the first building is 10 meter high. Okay. The angle of elevation of top of the second building is found to be 60 degree. Fine. What is the height of the second building? We want to find out height of the second building. अभी देखो कुछ लोग see there are many ways of doing it. हर एक तुम्हारे टीचर अलग सिखाएंगे, डाइजेस्ट में इधर उधर सब अलग दिया रहता है. कुछ लोग क्या दिमाग लगाते हैं कि ये 10 तो हमको पता है, we have to just find out C. So let C be X. ऐसा लेते हैं. फिर ये ट्रायंगल में वो लोग C फाइंड आउट करते हैं एंड देन दे ऐड इट वी टेंड टू गेट द आंसर. बट इन मेनी केसेस व्हाट हैपेंस, हम लोग को देखो कैसा रहता है, ह्यूमन टेंडेंसी x मिल जाए तो हम लोग बहुत खुश रहते हैं. ओके, बट ऐसा नहीं होता. आफ्टर गेटिंग x उनको लगता है चलो आंसर मिल गया, तो दे आर लाइक हाँ, है ना. सो x को 10 ऐड करना सब बच्चे काफ़ी टाइम भूल जाते हैं इन द एग्जाम. सो व्हाट वी विल डू, इंस्टेड ऑफ टेकिंग CE एज x, let us take CD as x. तो हम लोग क्या लिखेंगे? Let height of the second building be x. Therefore अभी given लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है. Therefore क्या मिला अपने को? CD is equal to x, AB equal to 10 meter, AE equal to 12 मीटर. ऐसे लिखो AE इक्वल टू BD इक्वल टू 12 मीटर एंड एंगल A CAE 60 डिग्री. करेक्ट. ये सब क्या है तुम्हारा? गिवन है ना. और AB इक्वल टू क्या? ED भी है. ED इक्वल टू AB. करेक्ट. Therefore, C कितना होगा रे बच्चों? C कितना होगा? CD माइनस ED. रीजन क्या देंगे? C डैश E डैश D. Therefore, C is equal to x minus 10 मीटर. मिल गया अपने को ये. C कितना मिला अपने को अभी? x minus 10. ये मिल गया x minus 10. करेक्ट. हमने ये क्यों निकाला C? तुम लोग देखो सेम स्टेप्स तो सेम ही, जो बाद में करने थे वो अभी कर लिया अपन ने, माइनस वगैरह लिख लिया. अगर तुम लोग C को x लेंगे तो क्या होगा? बाद में तुमको ये ऐड करना पड़ेगा. बट जनरली वी फॉरगेट टू डू दैट. देयरफॉर वी आर टेकिंग द होल हाइट एज x. तुम लोग चाहे तो C को भी x ले सकते हो. ओके, तो C कितना मिला? x minus 10. नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल AEC, what can we say? Tan 60 equal to EC upon
ए, tan 60 कितना देखो EC अपॉन A, करेक्ट. Therefore tan 60 is what, √3 equal to x minus 10 upon 12, correct. Therefore 12 √3 equal to x minus 10. Therefore 12 √3 plus 10 is equal to x, करेक्ट. हो गया अपना काम. क्या आंसर? हाइट ऑफ द सेकेंड बिल्डिंग is 12 √3 plus 10 meter. Is that clear, children? ठीक है. Let's move to the next question. Two poles of height The next question, two poles of height 18 meters and 7 meters. Two poles of height 18 meters and 7 meters are erected on a ground. तो एक 18 मीटर है और एक 7 मीटर है. Okay. The length of the wire is fastened at their tops is 22 meter. ध्यान दो, words टफ है मगर कुछ नहीं, इतना डर नहीं रहता है ना. फास्टन मीन व्हाट, उनको टाइट किया हुआ है फ्रॉम ईयर टू ईयर. ओके, दिस इज अ वायर एंड दिस वायर इज हाउ मच, 22 मीटर. फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल. सी, फाइंड द एंगल मेड बाय द वायर. ये वायर है ना रे बच्चों, है ना. ऐसा ले लेंगे इसको. एडी वायर है ना रे बच्चों, है ना. सीधी इधर पे बिल्डिंग्स, तो कैसे लिखेंगे? लेट ए बी एंड डी सी बी द बिल्डिंग्स एंड लेट ए एंड डी बी देयर टॉप्स रिस्पेक्टिवली. देयरफॉर द वायर इज एडी, करेक्ट. नाउ वी वांट टू फाइंड आउट द एंगल मेड बाय द वायर विद द हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल मतलब ये ना रे बच्चों, मैंने 100 बार सिखाया था हॉरिजॉन्टल. सो वी वांट टू फाइंड आउट दिस थीटा, करेक्ट. एंड व्हाट डू वी नो? We know that the heights of the poles, कि ये 7 है और ये कितना है, 18 है, करेक्ट. तो इधर नाम लेंगे इसको E. So what can we say? DC equal to EB equal to 7 and AB equal to 18 meters, है ना. ये क्या है, दोनों गिवन है. और क्या दिया हुआ है अपने को? AD इक्वल टू 22 मीटर. ये तीनों चीजें गिवन है, करेक्ट. नाउ व्हाट कैन वी से? AE इज इक्वल टू AB माइनस EB, करेक्ट. क्यों बोल सकते हैं हम लोग A डैश E डैश B, करेक्ट. देयरफॉर AE कितना है रे बच्चों, देखो 18 minus 7 that is 11 मीटर. सो ए मिल गया अपने को 11 मीटर, ये मिल गया 11. अभी देखो, मैंने तुमको स्टार्टिंग में जब लास्ट क्लास में सिखाया था वर्ड प्रॉब्लम्स, मैंने तुमको बोला था कि tan कब लेना है, sin कब लेना है, cos कब लेना है. देखना है दो ही चीजें, अपने को दिया है क्या और चाहिए क्या, करेक्ट. नाउ वी वांट थीटा. दिया क्या अपने को, देखो ऑपोजिट दिया है और हाइपोटेन्यूज दिया है ना. सी, एवरी टाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑपोजिट एंड एडजेसेंट दिया रहता है तो हम लोग tan यूज करते हैं. बट इन दिस केस दे हैव गिवन अस ऑपोजिट एंड दे हैव गिवन अस हाइपोटेन्यूज. तो ये हमको 11 मीटर ये मिल चुका है ऑपोजिट, और ये भी 22 पता है. सो ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज का कौन सा है रेशियो? साइन. सो वी विल यूज साइन इन दिस केस. तो कैसे यूज करेंगे, देखो. इन राइट एंगल ट्रायंगल AED, what can you say? Sin D is equal to AE upon AD, opposite upon hypotenuse. Sin D म्हणजे sin
इधर थीटा लिखने की जरूरत नहीं, तुम लोग डायरेक्ट सिर्फ डी लिख दो, है ना। सो साइन डी इज इक्वल टू ए कितना है 11, ए डी कितना 22, फ्रॉम स्टेटमेंट इसको दे दो 1, इधर दे दो 2, 1,2, therefore sin d is equal to 1/2, correct. But we know that sin 30 is half. How do we know? From the table. मैंने तुमको बोला था टेबल लर्न कर लो, और जब भी तुम लोग एग्जाम को जाओगे तो तुम्हारे लास्ट पेज पे टेबल को लिख दो. So from the table we know that sin 30 is half. Therefore angle D is equal to measure of angle D is equal to 30 डिग्री. इसके बाद में फाइनल आंसर भी लिखोगे. क्या लिखोगे फाइनल आंसर? आंसर एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द हॉरिजॉन्टल इज 30 डिग्री. ओके, बहुत इजी सवाल है. देखो ये टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो 3 मार्क या 4 मार्क को आएंगे. अच्छे से करो, अभी टेक्स्ट बुक के करो, अच्छे से प्रॉब्लम सेट के करो, सो दैट वंस the lockdown is over we will solve more and more question papers. So many questions, extra questions I have, वो भी हम लोग करने वाले. Let's move to question number 5. Storm broke the tree top. So what are they saying in question number 5? A storm broke a tree and the tree top rested 20 meters from the base of the tree. देखो इसमें से फिगर निकालने को आगे तो बाकी का तुम लोग कर सकते हो. A storm broke the tree, तो ट्री था, storm broke the tree, यहाँ पे ब्रेक किया इस ट्री को, है ना. And the tree top means this tree top, this came and it rested here, correct. Making an angle of 60 degree with the horizontal. ये 60 डिग्री क्या? देखो बच्चों ये रूट से ये टॉप है जो इधर था, ये वही है, ये वही है, इधर से इधर आया हुआ है. ओके, यू कैन एक्सटेंड दिस अ बिट इफ यू वांट. ये वही है ना. सो ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. ये दिया हुआ है 20 मीटर. वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द ट्री. नाउ देखो कैसा करेंगे. A B C. ओके, तो ये क्या था, ये पहले ट्री ऐसा था, ये गिर गया, करेक्ट. तो कैसे लिखेंगे? लेट द ट्री बी ब्रोकन एट पॉइंट A. Let B be position of the roots. Let C be the tree top. ठीक है, देखो लेट सारे अच्छे से लिखने हैं. उसके बाद में फर्स्ट स्टेप, देखो ये लेंदी है इसलिए मैं यही से लिख रहा हूँ. फर्स्ट स्टेप BC equal to 60 degree, sorry 20 meter and angle C is equal to 60 degree. ये क्या है तुम्हारा given है, correct. Now we want to find out the height of the tree, total height of the tree. मतलब क्या फाइंड करना है रे? इस केस में हमको दो चीजें फाइंड करनी है. AB भी फाइंड आउट करना है और AC भी फाइंड आउट करना है. ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द ट्री वाज. इतना बड़ा ट्री था ना, ये पार्ट गिर के नीचे है, मतलब ये ऐसा ट्री है ना, ब्रोकन ट्री है. देखो ऐसा बच्चों, ऐसा दिखा रहा है. ये ट्री अभी हो गया, करेक्ट. तो देखो ये रूट से ट्री के है ना, ये B, दिस इज पॉइंट A, सॉरी दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट A, ऐसा है. तो what is the height of the tree? This plus this means you have to find out AB as well as you have to find out AC, correct. तो AB और AC दोनों फाइंड आउट करने. तो फर्स्ट क्या फाइंड आउट करेंगे? चलो AB फाइंड आउट करते, कोई बात नहीं. तो हमको फाइंड आउट करना है AB, और अपने पास दिया क्या है? C भी दिया हुआ है, करेक्ट. सो क्या यूज करेंगे? tan यूज करेंगे, करेक्ट. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल
ABC tan C is equal to what? AB upon BC. Therefore tan 60 equal to AB माहिती नहीं, BC 20. tan 60 कितना? √3 equal to AB upon 20. Therefore AB equal to 20 meter. Sorry, 20 √3 मीटर. AB तो मिल गया, हाँ AB मिल गया तुमको कितना? 20 √3 मीटर. Now we have to find out AC. देखो कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं, पाइथागोरस से कर सकते हैं, अभी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. यू हैव BC, यू हैव AB, यू कैन फाइंड आउट AC बाय पाइथागोरस आल्सो. ऐसा कुछ नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री है तो हर इसमें ट्रिग्नोमेट्री चाहिए. तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री में भी पाइथागोरस यूज करके AC फाइंड आउट कर सकते हो इफ यू आर गेटिंग कंफ्यूज. बट कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हमको AC चाहिए. व्हाट वी हैव दिस, वी हैव दिस. हम लोग cos यूज करेंगे, cos आज तक यूज नहीं किया हुआ है ना. सो लेट्स यूज cos. सो अगेन इन, अच्छा वी कैन राइट डायरेक्टली cos C इज इक्वल टू व्हाट? cos क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज BC अपॉन AC. Therefore cos 60 equal to BC कितना? 20 अपॉन AC पता नहीं. cos 60 कितना होता है रे बच्चों? cos 60 कितना होता है बच्चों? हाफ इज इक्वल टू 20 अपॉन AC. Therefore AC is equal to 20 into 2, that is 40 meter. Correct? Therefore you will get, है ना. तो AC मिल गया 40 मीटर. तो देखो ये मिल गया 40 मीटर. उन्होंने क्या पूछा तुमको सवाल में? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. तो लिखेंगे हाइट of the tree is equal to AB plus AC. Correct? That is 20 √3 plus 40. चलो देखो कितना इजी, कुछ भी इसमें नहीं है. तो बच्चे क्या बोलते हैं? ब्रोकन ट्री, सब लोग डर रहे ब्रोकन ट्री. कुछ डरने की जरूरत नहीं. देखो बहुत ज्यादा इजी क्या है, बस इसमें दो कैलकुलेशन करने आएगा. तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स को आ सकता है, या फिर ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है जो फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं कि ये लोग बीच में किधर तो इधर ब्लैंक्स देंगे. ये पूरा लिखा हुआ रहेगा. दे विल कीप ब्लैंक्स हियर एंड देयर एंड यू शुड बी एबल टू फिल द ब्लैंक्स. लेकिन अगर तुमको ये अच्छे से करने को आ रहा है तो कोई डर नहीं. तुमको यहाँ पे cos की जगह sin दो, tan दो, कुछ भी दो. यू शुड बी एबल टू अकॉर्डिंगली फिल इट and do it whatever is required to get the answer in the exam. Let's move to the last question. Question number 6. Kite का सवाल है. A kite is flying at the height of 60 meter. देखो ये पतंग है ना. Kite is flying at the height of 60 मीटर. अभी हाइट के सब आंकड़ा लेते करें कभी हम लोग? नहीं ना. स्ट्रेट ऐसा. तो हाइट कितना है इसका? 60 मीटर. Above the ground, the string attached to the kite is tied to the ground. It makes an angle of 60 degree with the ground. देखो ये हाइट कितना है? 60. और ये जो स्ट्रिंग है दिस इज हियर, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 degree. Assuming that the string is straight, find the length of the string. Basically हमको length of the string ढूंढना ही है ना. So let A be the position of the kite. Therefore AB will be its height and C be the place where it is tied on the ground. Therefore AC equal to length of the string. सब लोग लिख सकते हैं हमारे खुद से. चलो ये लिख दिया. Therefore अपने को ये ढूंढना है और अपने को ये दिया हुआ है.
तो देखो ऑपोजिट तुमको दिया हुआ है और हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या फाइंड करेंगे, साइन, तो क्या बोलेंगे साइन सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। साइन सी क्या है बच्चों, साइन 60 इक्वल टू ए बी कितना 60 अपॉन ए सी माहिती नहीं, साइन 60 कितना होता है √3 अपॉन 2 इक्वल टू 60 अपॉन ए सी, देयरफॉर ए सी इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। लेकिन ऐसे डिनोमिनेटर में √3 हमको पसंद नहीं है ना, ये 120 √3 आता है, तो इसको इंटू √3 करेंगे, करेक्ट। सो व्हाट डू वी गेट 120 √3 अपॉन 3, दैट इज 40 √3, करेक्ट। 40 √3 मिल गया। इसको क्या करेंगे, अभी तुमको √3 का वैल्यू दिया हुआ है, 1.73 से मल्टीप्लाई करेंगे and you will get whatever is the answer, that is the length of the string। देखो बच्चों बहुत easy chapter, we are done with trigonometry। in the next class we will start with mensuration। अभी हमारे सिर्फ 2 चैप्टर रह गए, mensuration और statistics, बाकी पूरा पोर्शन हो चुका है। start studying, hopefully in the next month the classes will start, the normal classes will start, तो immediately we will start with the exams। I don't want any other excuses कि हम लोगों ने लॉकडाउन में पढ़ाई नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो अभी से पढ़ाई करना चालू कर दो। ओके फ्रेंड्स, स्टे होम, स्टे सेफ।